Okay. Good evening, friends. This is the third lecture of our function topic. और इसमें हम बेसिकली मतलब वो डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन सपोज आपके पास एक एक तरह से मतलब वो ग्राफ दिया हुआ है. Then you can say that whether that graph is representing a function or not with the help of some steps. ठीक है. तो सपोज आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है. सपोज आई एम trying to show you with some examples. suppose this is your y-axis and x-axis. Suppose any मतलब ऐसे ले लो. Suppose this is a graph. Suppose we are saying this is y equal to f of x graph. तो इसको मुझे मतलब ये बताना है कि is this वो relation is defining any function or not. ठीक है. Just by मतलब वो looking at the graph only. ठीक है. तो इसका हेडिंग डालो सबसे पहले कि ग्राफिकल मेथड टू चेक या फिर टू फाइंड whether a given relation is a function or not. ठीक है. फंक्शन और not. तो ठीक है. तो सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स लिख लेता हूँ, देन मैं बताता हूँ. स्टेप 1. तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपको एक मतलब वो रिलेशन दिया रहेगा ना y और x के मतलब वो बीच में. देन जैसे सपोज y इक्वल टू f ऑफ x, कुछ सपोज यू आर गिवन सम काइंड ऑफ मतलब वो रिलेशन, लेट्स से y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x. ठीक है. तो दिस इज वन टाइप ऑफ, क्या है ये, दिस इज वन टाइप ऑफ ए रिलेशन. So now you need to check whether this relation is a function or not with the help of its graph. ठीक है. So step 1 हो गया. At first draw the graph of the given relation. And what is that relation? Suppose I'm assuming y equal to f of x. So this is the relation you have. And first of all, you need to draw the original graph of this thing, relation. Next, let's do step 2. Draw a vertical line. मतलब वो ऐसे मतलब वो ग्राफ को वो ड्रॉ करना है. सपोज such that this line, such that this line cuts the graph at maximum number of points. मतलब वो वर्टिकल लाइन आपको मतलब वो ऐसा मतलब वो ड्रॉ करना है लाइक दैट, सच दैट वो मतलब उस ग्राफ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करे. ठीक है. या फिर टच करे, वो भी हो सकता है. क्लियर. तो उसके बाद ये दोनों स्टेप हो जाने के बाद नाउ यू कैन डिक्लेयर इफ the vertical line that we have drawn in step 2, if the vertical line cuts the graph at strictly one point, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो कट करता है, at strictly one point, then we can say it is a function. Then this given relation is a function. And if it cuts at more than one point, वो भी लिख लो. And if it cuts at more than one point, then the given relation then it is not a function. Clear. Okay. Now the question is why.
why this is happening and why we are drawing a vertical line here. Okay, so let's try to visualize the thing with the help of certain examples. Okay, my very favorite example is y equal to modulus of x. Okay, तो हम उससे शुरू करते हैं. Let's look at examples. Suppose you were given a relation, first of all, y equal to modulus of x. Now you need to tell me whether this relation is representing a function or not. ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशंस थे? फर्स्ट कंडीशन वाज दैट each and every element of first set should be connected. Clear? And those मतलब वो first set जो होगा those elements are inside the domain. मतलब वो जो first set था आपका a set, वही a set में मतलब जो ये पूरा a set है and this entire a set is called the domain of the function. ठीक है, the entire set is called the domain of the function, and this is the first condition and this need to be satisfied. Clear? Now second देखो कि जो देखो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, इस टाइप का होना नहीं चाहिए. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसके साथ मतलब वो इस सेट का बी सेट का मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं रह सकता. ठीक है, आई होप ऑल दोस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. इसमें मतलब वो डाइवर्जेंट नहीं हो सकता. ठीक है, ना इसमें देखो, इसमें जो इनपुट है आपका, इनपुट इज x एंड आउटपुट इज योर y. ठीक है, देन फर्स्ट सेट विल बी ऑफ x वैल्यूज, है ना. जो फर्स्ट सेट होगा वो आपका क्या होगा, x वैल्यूज होगा, है ना. और बी सेट में आपका आएगा y वैल्यूज, इसमें आएगा x वैल्यूज. क्लियर? देखो अब देखो, इफ यू आर कंसिडरिंग द एंटायर मतलब वो रियल एक्सिस, वो रियल नंबर्स, इफ यू आर कंसिडरिंग द एंटायर रियल नंबर एज द मतलब वो x वैल्यूज और वी कैन से एज इनपुट वैल्यूज, देन आपको देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे कुछ भी चीज़ का हम मतलब वो ले सकते हैं ना, ऐसे मॉडुलस ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो. ठीक है, दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी नंबर्स विच आर इन मतलब वो रियल एक्सिस, वो जो एक्स एक्सिस है, तो मतलब वो हर एक पॉइंट के लिए दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड. सो दैट इज वाई इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर. दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रियल नंबर्स रहेंगे. All those real numbers from minus infinity to plus infinity will be here. And यहाँ पे देखो, यहाँ पे y equal to modulus of x है. That means अगर यहाँ पे आपका y equal to modulus of x है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा पॉइंट रहेंगे? यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर्स आर ओनली देयर. नॉन नेगेटिव नंबर्स वी कैन हैव हियर. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा. Why? Because first condition is saying each and every element should be connected. Now here we are taking the each and every element on x-axis. तो मतलब basically मतलब वो real number है, तो मतलब वो all the numbers are connected here. ठीक है, यहाँ पे connected है. और बात है अगर यहाँ पे मतलब वो एक तरह से मतलब वो डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, so but according to our steps, these two steps, तो हम इसको कैसे भी सोच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. कैसे भी सोच सकते हैं. देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. सपोज दैट एंड फॉर दैट यू नीड टू नो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, मतलब वो दिस गिवन मतलब वो रिलेशन बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ग्राफ थोड़ा वी शेप टाइप ऐसा दिखता है. आई होप यू ऑल पीपल आर फैमिलियर विद दिस ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बेसिकली y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, है ना. फर्स्ट स्टेप में क्या करना था? एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन रिलेशन. नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप, इन सेकंड स्टेप यू आर सेइंग दैट ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन सच दैट द लाइन कट्स द ग्राफ एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स. अब यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है, मतलब वो इन सच ए वे दैट कि वो वाला वर्टिकल लाइन आपको सिर्फ एक ही मतलब क्या हो कि जो ये है के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मतलब वो कट करे. देखो आप यहाँ पे एक ऐसे कट करोगे, यहाँ पे करोगे. दैट मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट इफ यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन हियर, देन
कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसमें? मैक्सिमम ओनली वन। देखो मैं यहाँ पे वो कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन हैव व्हेन यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? देखो, इफ दिस वर्टिकल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट स्ट्रिक्टली वन पॉइंट, देन वी कैन से दिस गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, सो दैट इज वाई वी कैन से कि दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। अब बात आई क्यों, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मतलब मतलब वो एक ही स्टिकली पॉइंट होने से क्यों वो होता है, फंक्शन होता है? ठीक है, तो वो मैं अभी बताता हूँ, एक मतलब वो दूसरा एग्जांपल लेके। एंड आई होप यू पीपल हैव ऑलरेडी वॉच माय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वीडियोस। उसमें मैं आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाया था, दिस इज मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू x। एंड इफ यू हैवंट वॉच, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। सो इसका ग्राफ हम बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा दिखता है? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू x। ठीक है, so this is the graph, and now you have to tell me, is this relation a function? Is this relation a function? तो कैसे चेक करोगे? with the help of this graphical method, you just need to draw a vertical line, and मतलब वो in such a manner कि जो वो vertical line आपका ये maximum number of points पे कट करे। देखो, you have possibilities to draw a vertical line here only, but यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, so this is not acceptable. Now you can draw a vertical line here, and now you can see कि यहाँ पे 2 points of intersection है, this and this। ठीक है, now you can see here 2 points of intersection. So since it is cutting the graph at more than one point, then it is not a function. Then it is not a function. That means we can say it, this is not a clear। अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। कि मतलब देखो, हमने एक मतलब ये वर्टिकल लाइन खींच लिया, तो उसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर मतलब एक से ज्यादा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, देन व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? नाउ आई एम ट्राइंग टू शो यू, सी हियर। ठीक है, सी देखो, वी आर क्रिएटिंग क्या वर्टिकल लाइन है ना। तो वर्टिकल लाइन का आपका वो इक्वेशन क्या होता है? सपोज आई एम टेकिंग एन वो एग्जांपल, सपोज x इज इक्वल्स टू 5। दिस x इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन विच इज वर्टिकल, है ना, वो वर्टिकल है। देखो, अगर ये x इज इक्वल्स टू 5 है, ये वाला लाइन, देन कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस वन। देखो देखो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 है, दैट मीन्स कैन यू से व्हाट इज दिस y वैल्यू? अगर यहाँ पे तुम x इक्वल्स टू 5 पुट करोगे, then you will be having modulus of y equal to 5, then again that means y equal to plus of 5 or minus 5। ठीक है, that means that top point का कोऑर्डिनेट भी मिल गया आपको, और इस वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। सो दिस इज अ पॉइंट 5,5, this will be 5,5, and the below one will be 5, minus 5। क्लियर? 5, minus 5 हो गया। दैट मीन्स अगर मैं इसका सेट ऐसे वो बनाओ, डोमेन और मतलब वो रेंज देखो, सो दिस इज ए, दिस इज बी। तो देखो यहाँ पे एक देखो, दिस फर्स्ट सेट इज सेइंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहाँ पे बी पॉइंट में कौन सा वैल्यू आएगा? वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो, आप इसमें आपका एक पॉइंट देखो, इसमें ऑल रियल नंबर्स, हाँ इसमें ऑल रियल नंबर्स नहीं आएंगे। इसमें देखो वो 5 वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, है ना, 5 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, दिस इज एक्स वैल्यू। और इसके साथ देखो 5 भी कनेक्टेड है और -5 भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स यू आर हैविंग ए दिस टाइप ऑफ रिलेशन विच इज डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट। समझ रहा है? देखो इसमें मतलब कौन सा चीज हो रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। ओके, सो ऐसा तो हो नहीं सकता, डाइवर्जेंट हो नहीं सकता। अगर ये मतलब वो डाइवर्जेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। देखो, अगर तुम ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, अगर वो वर्टिकल लाइन में वो फंक्शन कुछ मतलब वो ऐसा, देखो अगर वो ग्राफ कुछ इस टाइप का है, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज कटिंग द लाइन एट मोर देन वन पॉइंट। अगर मोर देन वन पॉइंट हो गया, दैट मीन्स सिर्फ एक एक्स पॉइंट के लिए, सिर्फ एक एक्स पॉइंट के लिए you have many number of y values, correct? You have many number of y values, तो दैट मीन्स ये वाला आपका डाइवर्जेंट वाला वो कंडीशन आ गया। तो अगर ये वाला मतलब वो हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट कंडीशन आ गया, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड टू फाइंड वेदर ए गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू some examples. Example number 3, y square equal to 4x. So this is the standard form of a parabola, है ना? तो आपको पता होगा क्लास 11 से, and I hope you can also draw the graph of this function. तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ looks like this one, इस तरह y एक्सिस को टच करेगा एंड ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। नाउ यू कैन से कि this is not a function, है ना? This is not a function. Why? Because you have to draw any vertical line such that it cuts the maximum number of points. So this is a vertical line, and this vertical line is cutting the graph at more than one point. That means for single value of x, you have two values of y. Clear? You have two values of y. So that is why this is not a function. This is not a function. Clear? Okay. Now again, I am taking the fourth example, which is y equal to root x. Can you draw the graph y equal to root x? y equal to root x. देखो इसको भी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो। ओके, नाउ आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, इसमें x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट लुक एट दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड जस्ट टेल मी कि इसमें x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता। द आंसर इज, इसमें x का वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स कंपल्सरीली दिस x हैज टू बी नॉन नेगेटिव। व्हाई आई एम मतलब वो यूजिंग द वर्ड नॉन नेगेटिव, बिकॉज आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और साथ में इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। क्लियर? सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड नॉन नेगेटिव। सो इसमें x का क्या मतलब वो रेस्ट्रिक्शन आ गया कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जीरो को इंक्लूड करके जीरो से बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। So this is the condition. And how many of you know कि here this y is also a non-negative quantity because it is a root basically. जैसे y equal to root 4 is 2, only 2, है ना? तो that means देखो इसमें कुछ है नहीं तो सामने, that is why this y is a positive number. देखो इसमें इस रूट के सामने प्लस है, that means this is a positive number. अगर ये माइनस रहता तो माइनस मतलब वो नेगेटिव हो जाता। That is why we can say this y is also a positive number. और वो इसमें मतलब वो जीरो भी हो सकता है। कब जीरो होगा? व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो, देन y बिकम्स जीरो। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका ग्राफ बनेगा, इस चीज का ग्राफ जो बनेगा, दैट ग्राफ विल ओनली लाई इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग दिस टू एक्सिस। व्हाई? देखो x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? यहाँ पे x पॉजिटिव आता है, यहाँ पे x पॉजिटिव आता है ना? x इज पॉजिटिव हियर। अब y कहाँ पे पॉजिटिव आता है? ऊपर की तरफ, है ना? ऊपर की तरफ y पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स अगर वो मतलब वो देखो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है एंड ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स द ओनली क्वाड्रेंट लेफ्ट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? तो जो पूरा जो ग्राफ आएगा, दैट ओनली ग्राफ विल लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। क्लियर? ओके, नाउ इसको ड्रॉ करते हैं। अभी इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस पैराबोला। सेम थिंग, जस्ट स्क्वायर इट, y स्क्वायर इक्वल टू x, एंड दिस इज ए सिमिलर पैटर्न ग्राफ, इट विल लुक्स लाइक दिस। ठीक है, बट अभी जस्ट हमने आपको बोला कि ये दोनों कंडीशंस भी आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मीन्स जो ग्राफ आएगा, दैट ग्राफ विल ओनली लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट है? सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है। सो दिस इज योर y इक्वल टू रूट एक्स वाला ग्राफ। इसको याद रखो, ठीक है? इस ग्राफ को याद रखो। y इक्वल टू रूट एक्स वाला ग्राफ ऐसा दिखता है।
क्लियर? एंड सपोज मैंने आपको ये भी बोला कि y इक्वल टू -2x का ग्राफ कैसा दिखेगा, -2x का ग्राफ। नाउ यू कैन इजिली ड्रॉ ऐसा, बस उल्टा, मतलब वो नीचे वाला हिस्सा आएगा सर, ठीक। नाउ वी आर इंटरेस्टेड ऑन दिस ग्राफ, दिस पर्टिकुलर ग्राफ। सो कैन यू टेल मी कि ये वाला ग्राफ आपका एक फंक्शन है या नहीं? इज दिस ए फंक्शन? Is this a function? Yes, the answer is yes. Why? Because you need to draw any vertical line such that it cuts the maximum number of points. तो यहाँ पे maximum number of points सिर्फ एक ही आ रहा है, so that is why this is a function. This is a function. देखो ये वाला function नहीं हुआ, but ये वाला हो गया function. Clear? Okay. Now we can move forward. You have more examples. Fifth example, which is x square equal to 8y. X square equal to 8y. Again, this is a parabola. को पता ही होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। एंड अगर आपको नहीं पता, देन वी विल श्योरली कवर द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एंड मोर ओवर वी विल सी द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट स्पेशली। ओके, देखो इसका ग्राफ इस तरह का दिखता है। इट टचेस द लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब वो जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है उस लाइन को ये टच करता है। ओके, सो कैन यू क्विकली टेल कि वेदर दिस इज ए फंक्शन और नॉट? देखो इसमें भी आप ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो कहीं पे भी, सच दैट इट कट्स द ग्राफ एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो आई एम ड्रॉइंग ए वर्टिकल लाइन हियर एंड आई कैन सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज ओनली 1। तो सिर्फ ओनली 1 है, दैट मीन्स एक एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाई है आपका, सिर्फ एक एक्स वैल्यू के साथ सिर्फ एक y वैल्यू है। ओके ओके, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ओके, सो ओके, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज ए मेनली दिस इज नॉट ए लाइव क्लास। ये आपका मतलब रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको मिलेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, जस्ट कॉमेंट में आप मुझे वो बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू कवर your queries in next videos. Can anyone tell me what is this equation represents? What this equation represents? Basically, I hope you people are very familiar with this equation. This equation is representing a circle of unit radius, and its center lies on origin, basically. So this is x-axis, this is y-axis, this is origin, and this point is 1, 0. ठीक है? So this is a circle basically, जिसका रेडियस 1 है। एंड अगेन ये वाला सर्कल भी आपका, दिस इज नॉट ए फंक्शन। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर ड्राइंग ए वर्टिकल लाइन हियर, देन यू कैन क्लियरली सी दैट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर मोर देन 1। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ which you people need to remember. Y equal to x cube. So y equal to x cube, देखो इसका ग्राफ कैसा दिखता है? एट पॉइंट 0, ये 0 से पास हो जाएगा ना, 0 से मतलब वो 0, इज मतलब वो सेटिस्फाइंग। एंड इफ यू पुट प्लस इन्फिनिटी, देन यू विल बी हैविंग प्लस इन्फिनिटी, है ना, मतलब वो इन्फिनिटी क्यूब, दैट मीन्स प्लस इन्फिनिटी आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। एंड इफ यू पुट माइनस इन्फिनिटी हियर, तो माइनस इन्फिनिटी देखो वहाँ के मतलब वो सामने आपका एक मतलब वो क्या है, माइनस साइन है, और मतलब वो उसका क्यूब लोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, तो नीचे की तरफ आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एक पॉइंट रख दो नीचे की तरफ, बस ऐसे कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। इट्स नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, ऐसा दिखेगा। सो अगेन आई एम आस्किंग यू वेदर दिस इज ए फंक्शन और नॉट। जस्ट ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन एट एनी पॉइंट such that it cuts the maximum number of points. बस यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, सिर्फ एक पॉइंट देखा मैंने, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, only one point. So that is why this is a function. This is a function. Yes, this is a function. This is a function. Clear? This is. Now, moving to the 8th example. So इसमें मैं कुछ मतलब वो रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ. I am just trying to show you a graph. उस ग्राफ को ध्यान से देखो. I'm trying to show you a graph. इसमें now I am not putting any kind of relation with x and y. Just a given graph, let's say. Suppose that graph looks like, suppose this is a vertical line and this is one part of the graph and this is one part of the graph.
Okay, so suppose this is y equal to, this is a relation, suppose g of x, I'm saying g of x. Okay, so can anyone tell me, is this a function? Yes, so no. देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बट व्हाट इज द कंडीशन? यू नीड टू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन इन सच ए मैनर कि वो वर्टिकल लाइन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ही कट करे वो उस ग्राफ को, ठीक है? सो यू हैव टू ड्रॉ कंपल्सरी, देखो कंपल्सरीली कि यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्लियर? सो अगर ये देखो इसमें एक x फिक्स्ड हो गया ना, सपोज x इक्वल्स टू 5, तो फॉर x इक्वल्स टू 5 यू हैव मेनी नंबर ऑफ y वैल्यूज आर पॉइंट, मतलब वो सब आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली। सो एक x पॉइंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कुछ कनेक्शन रहेगा, सो दिस इज अ डाइवर्जन काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन, not a function. Yeah. Okay. So how many of you can remember the graph of box of x, greatest integer function? Because these are the fundamentals of mathematics we have learned, and if you haven't watched those videos, I would strictly recommend you to go and scan this QR, scan this, or you can click here also. And you can access all the previous lectures from my fundamentals of mathematics, and you can watch those videos for free. Okay, now I am asking you whether this is a function or not. This is a greatest integer, box of x. Okay, yeah, मतलब वो बेसिकली नाम के ऊपर ही है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो यस, दिस इज मतलब वो डेफिनेटली अ फंक्शन, बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ विल यू से कि इट इज ए, मतलब वो बेसिकली फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो, इफ एनीवन कैन रिमेंबर, इट्स ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था ना, स्टेप वाइज, लाइक दिस वे. ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था. ओके, क्लियर? अगर इसका ग्राफ ऐसा है, then again this is the first step. इसका ओरिजिनल ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया. Now the second step is you need to draw any vertical line such that it cuts the graph at maximum number of points. So what तो देखो, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, या अब अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा ना. दैट मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट व्हेन देखो जहाँ पे भी आप मतलब एक वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, you can see that vertical line is cutting the graph at only one point, single point of intersection. So that is why this is a function. This is a function. Yes, this is a function. Okay, मैं इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ such that आपको एकदम मतलब वो दिमाग में बैठ जाए बेसिकली. Now most importantly, this is a very simple graph. X equals to 5. Is this a function? X equals to 5. Think about it. Before I tell you, just answer. X equals to 5 is a graph which is nothing but a vertical line itself. This is a vertical line, x equals to 5. And this is the original graph, x equals to 5. And now, आपको second step भी follow करना है. Second step क्या कहता है? कि you need to draw a vertical line such that it cuts the maximum number of points. So देखो, इसमें आप vertical line अगर खींचोगे, इसको कट, देखो बस मतलब क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. दैट मीन्स फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल्स टू 5, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x, एक x वैल्यू के लिए यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ y वैल्यूज. यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ y वैल्यूज. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेट का एक एलिमेंट पकड़ लिया व्हिच इज 5, एंड यहाँ पे आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहा है. दैट मीन्स अगेन इट इज दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, डाइवर्जेंट काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि दिस इज नॉट अ फंक्शन. Not a function. So x equals to 5 is not a function. Just remember. And if I give you another example, suppose y equal to 5, is this a function? Y equal to 5, is this a function? So let's look at its graph. Y equal to 5 is a simple horizontal line, है ना? Horizontal line, y equal to 5, nothing but a horizontal line. So y equal to 5 हो गया. बस यहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट इज द सेकंड थिंग, सेकंड स्टेप. सो कहीं पे भी ड्रॉ करो, सिर्फ ओनली एक के पॉइंट पे ये कट करेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज अ फंक्शन. क्लियर? आई होप you are with me. And
ओके another example I am taking here, which is x equals to box of y. ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना ड्रॉ करने के लिए, कैसे करते हैं आपको पता होगा, बिकॉज इफ यू वॉच दैट वीडियो वेयर आई वाज टीचिंग यू y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे मतलब वो डेफिनेशन लेके ना, जैसे 0 टू x का वैल्यू 1 तक आ गया, 1 से 2 तक आ गया, तो कुछ रिलेशन आएंगे, देन कुछ ऑल्सो यू हैव सम रिलेशन. अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही कुछ मतलब वो रिलेशंस लोगे जिसमें बस x और y को चेंज कर दोगे, x ऐसा आएगा, y है, तो नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू 1, है ना. तो सपोज दिस इज 1, दिस इज 0. अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, देखो जब y आपका मतलब वो 0 और 1 के बीच में है, देन वो चीज़ क्या क्या मतलब वो करते हैं, मतलब वो रिटर्न करता है बॉक्स ऑफ y 0 रिटर्न करेगा, है ना. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 वाला लाइन आएगा फ्रॉम 0 टू 1. तो 0 टू 1 y में इफ y इज लाइंग इन बिटवीन 0 टू 1, मतलब ये वाला पोर्शन में आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, x इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन, सिंपल y एक्सिस है ना, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में y एक्सिस वाला लाइन आएगा, तो वो कैसा दिखेगा, y एक्सिस वाला लाइन देखो 0 पे क्लोज और इसमें ओपन, ऐसा कुछ दिखेगा ना, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा. एंड सिमिलरली यू हैव यू ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन योर ओन, ये कुछ इस तरह का दिखने वाला है, लोकेशन वाला सिंबल. ठीक है, अब इसको खुद से ड्रॉ करो, वो पता लगेगा कि ऐसा कुछ दिखने वाला है. ठीक है. Okay, so this is the graph of x equals to box of y. Again, I am asking you, is this a function? The answer is no, it is not a function. Why? Because यहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन खींचोगे कहीं पे भी, देन यू कैन सी हियर यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना, वो ग्राफ के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन. ओके okay, and here I am giving you an home task to do. 13th example, suppose you need to draw this graph and you should tell me whether this is a function or not. कैसे करोगे, सेम स्टफ. देखो y का क्या रेस्ट्रिक्शन है, इसमें y क्या नहीं हो सकता, y इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स y हैज टू बी नॉन नेगेटिव. एंड सिमिलरली इस रूट के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, दैट मीन्स x इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है. अगेन दिस ग्राफ विल लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा. मैं खुद बना दिया अभी, बात नहीं, लोग भी ट्राई करिएगा खुद से. ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा ना. और कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लोगे दिमाग में ही, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. सो दिस इज ए पैराबोला, बेसिकली अपवर्ड पैराबोला, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस को ये टच करता जाएगा ऐसे. ठीक है, ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच करेगा. बट विच पोर्शन यू नीड टू टेक ओनली दिस पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ओनली दिस पर्टिकुलर, मतलब सिर्फ ये वाला ग्राफ होगा आपका. And is this a function? The answer is yes, this is a function. Yes, this is a function. Why? Because अब देखो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन खींच के देखो, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, so this is a function. Clear? Okay, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. इसमें हमने बेसिकली सिर्फ एक ही टॉपिक को देखा, एंड दैट टॉपिक इज यू नीड टू you can check whether a given relation is a function or not with the help of its graph. Okay, I hope this is clear, and if you find any difficulty to understand this concept, you just write in the chat box or comment section and I will take that out in our next video. Okay, so in the next video I will be discussing about more about domain of a function, और इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, so be ready for that. Okay, thank you.